Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. Since you all know, we are doing unit number 1, Simorg of SST. This unit is about birds, about some birds. They are on a journey. वो एक सफ़र पे हैं to search their king. अपने king को तलाश करने की journey पे हैं. And we have got to know up till now that they have passed through 7 valleys, 7 valleys से गुजर के now they have reached the palace of the king. They are about to enter the palace. They have faced 7 unique challenges up till now and they have passed the final test as well. And now they are about to enter the palace. Let's begin our today's lecture and let's continue the story. It's very interesting story and we are going to complete this story today and we'll get to know what happens next. So let's begin. Inside the palace there were many whales. Palace के अंदर whales means नकाब, बहुत से नकाब थे. The whales got lifted so that the birds could see smoke. So the whales were to cover the king, to hide the king. King को छुपाने के लिए नकाब थे. The whales got lifted. नकाब उठाए गए so that the birds could see smoke. ताकि जो birds थे वो smoke को यानी king को देख सकें. What they saw was most surprising. What do you think? What kind of king, what kind of bird Simorg is going to be? So, they were very surprised. They were amazed to see the king. उनको बहुत हैरत हुई, वो बहुत surprised हुए king को देखकर. There was a mirror in front of each bird. हर परिंदे के सामने एक mirror था. In the mirror, the bird saw itself. So all of the birds saw themselves in the mirrors. हर परिंदे ने अपने सामने मौजूद मिरर में खुद को देखा. All 30 birds were looking at themselves at the same time. So all of the birds were looking at the mirrors at the same time. एक ही टाइम पे सब birds खुद को different mirrors में जो इनके सामने पड़े हुए थे उसमें देख रहे थे. Then they understood who Simorg was. तब उन्हें समझ आई कि सिमोग कौन है. इन पर्शियन फारसी में सी मीन्स 30. सी का मतलब 30 होता है. मॉर्ग मीन्स बर्ड. सी का मतलब 30 होता है. मॉर्ग का मतलब परिंदा होता है. सिमोर्ग मेंट 30 बर्ड्स. तो सिमोर्ग का मतलब था 30 बर्ड्स. They were Simorg. All of them were Simorg. Each bird was Simorg. इसका मतलब है कि Simorg वही सारे परिंदे थे. कोई भी अलग परिंदा किंग नहीं था. Every bird seeing itself at the same time, feeling equally confident and all of them happy. This was Simorg. हर परिंदा खुद को मिरर में देख के खुद को सिमोर्ग समझ के बहुत कॉन्फिडेंट और खुश महसूस कर रहा था. वो सारे परिंदे ही सिमोर्ग थे. सब बर्ड सिमोर्ग थे. खुद को देख के शीशे में मिरर में वो बहुत ही सब एक जितना कॉन्फिडेंट यानी बहुत मोटिवेटेड. उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था. वो बिल्कुल भी उनमें कोई डर नहीं था और वो बहुत खुश थे. A voice came from the throat of every bird at the same time. एक आवाज़ हर बर्ड के गले से निकली सेम टाइम पे. I am Simorg, but I am greater than all of you. एक आवाज़ निकली सब के गलों से. मैं सिमोर्ग हूँ लेकिन मैं आप सब से बड़ा हूँ. I am greater than all of you. मैं आप सब से बड़ा हूँ. Come, let's unite so that we may never get divided again. और ये भी कि आ जाओ और let's unite इकट्ठे होते हैं. So that we may never get divided again ताकि हम दोबारा कभी अलहदा ना हो सकें. This story was written by the great Iranian poet Sheikh Fariduddin Attar of Nishapur in 1177. ये सिमोर्ग की स्टोरी
1177 में एक ईरानियन यानी ईरान के एक फेमस पोइट फरीदुद्दीन अतार ने लिखी थी। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग पोम इन पर्शियन, यानी फ़ारसी में ये एक लॉन्ग पोइम थी जो कि ईरानियन पोइट ने लिखी, बट दिस इज़ ट्रांसलेशन ऑफ दैट पोइम। द चैप्टर इज़ वी आर रीडिंग, ये सेम पोइम नहीं है। दिस चैप्टर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पोइम। एक्चुअली में एक ईरानियन पोइट ने एक लॉन्ग पोइम लिखी थी सिमोर्ग पे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है उस पोइम की। इट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स मंतिकू तायर। ये बर्ड्स की कॉन्फ्रेंस यानी जिसमें वो लोग बात करते हैं वो कहलाती है। ऑलमोस्ट 800 ईयर्स लेटर, तकरीबन 800 साल बाद, जमीलुद्दीन आली द ग्रेट पोइट ऑफ पाकिस्तान रोट अ सॉन्ग इन उर्दू विच गिव्स अस द सेम मैसेज। तकरीबन 800 साल बाद एक फेमस उर्दू पोइट जमीलुद्दीन आली ने एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही यूनिक और अ ब्यूटीफुल पोइम ही रोट विच गिव्स द सेम मैसेज, जो सेम मैसेज देती है जो मैसेज हमें सिमोर्ग से मिला। You must have heard it. It is called Jeewe Pakistan. Read the text of the song below and note the lines which remind you of the story of Simorg. So, the song which Pakistani poet wrote is also written on your book. As you can see, Jeewe Pakistan. Read the song as well. But what is the lesson that we get from this chapter? The lesson is the lesson of unity. What does unity mean? Unity का क्या मतलब होता है? Unity means इकट्ठे होना. Unity is very important for everyone, for every nation. हर कौम के लिए unity बहुत important होती है। अगर कोई भी नेशन यूनाइट नहीं होती, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो बाहर से कोई भी लोग या जो भी उनके दुश्मन और एनिमीज़ होते हैं वो उनको आसानी से उन पे अटैक कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं। अगर कोई भी नेशन यूनाइट होके अपने एनिमीज़ को और अपने चैलेंजेस को आसानी से फेस कर लेती है तो वो कौम हमेशा तक ज़िंदा रहती है। सो वी गेट द मैसेज ऑफ यूनिटी, टू बी यूनाइटेड एंड टू सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे आपकी क्लास हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपकी नेशन हो, यू शुड सपोर्ट ईच अदर एंड यू शुड बी यूनाइटेड। यू शुड बी देयर फॉर ईच अदर, फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए हर बुरे और अच्छे वक्त में आपने एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी। सो वी गेट दिस मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ रीड द टेक्स्ट ऑफ दिस सॉन्ग। ये जो पाकिस्तानी सॉन्ग है इसको पढ़ें और इसमें से आपने वो वाली लाइंस नोट करनी हैं जो आपको यही सेम मैसेज, यूनिटी का मैसेज, और जो आप इस चैप्टर में आपको लगता है सिमिलैरिटीज़ हैं इस चैप्टर में और इस सॉन्ग में, उनको नोट करें एंड लेट मी नो एज वेल। और इसके अलावा आई सेंड pictures of question answer of this chapter and I'll send the picture of exercise as well. You have to do those question answers on your notebooks. आपको यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स की पिक्चर्स मैं भेज दूँगी, आपको वो अपनी नोटबुक्स पे काम करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो इंशाल्लाह। स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।